Yes, good evening and welcome to today's session. This is the last session of the 10-day journey, 10-day, short trip that we took together. Yeah. Some things that I learned in the past 2 to 3 years. I just wanted to share with you that how important it is that we stay connected to our roots, to the nature, and how we can actually attract what we really want. Okay, so gratitude is the most important thing. No matter how much you try and manifest, okay, if you don't have the points, okay, see, the universe is all about energy. If we are not giving positive energy, then how are we going to get something that we want in return? Okay, so that is why gratitude, wishing someone well, is so important. So no matter what you are thinking, what you are doing, you have to show compassion, you have to do your gratitude. Okay, so that is the most important thing. Staying happy. आप सोचो ना, सैडली कोई बोले हाँ थैंक यू मम्मा, इतना अच्छा आप मेरे लिए गिफ्ट लाए, कैसा लगेगा आपको? और एक जन बोले वाओ मम्मा थैंक यू सो मच, यू गॉट मी सच एन अमेजिंग गिफ्ट, हाउ विल यू फील? So that there's a difference in the level of energy. So that happiness, okay, is like more energetic, more positive, that attracts more positive frequency. Okay, so staying happy, staying upbeat, like you would call it, or more in the zone, that is most important. Gratitude is very important, and to attract what we actually want, these two are important. ओके, सो एवरीवन, आई एम श्योर इज क्लियर. मैं हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन यही बोलते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड करना है, हैप्पी रहना है, और क्या चाहिए हमको वो भी बहुत ज़रूरी है. या सो एवरीवन इज क्लियर? यस. ओके, Yes, ma'am. wonderful. So any questions so far that you have before we conclude today's session? Oh, sorry, start today's session. Yeah. मैम मैं शेयर करना चाहती हूँ. हाँ बिल्कुल, आई लव शेयरिंग्स. बोलिए तनिष्का. या मैम आज मेरा एग्जाम था और मैं कल कल ही मैंने प्रिपरेशन की थी पूरी. मैं परसों तरसों कुछ नहीं पढ़ा था. तो हाँ. मैं यही सोच के चली थी कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा. और मेरा पेपर बहुत इजी आया था. और ओके. ये ना मेरे 20 में से 18 या फिर 18 मार्क्स आ सकते हैं. वाओ, वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो आपने कल ही प्रिपेयर किया, एंड यू आर सेइंग कल प्रिपेयर किया, एंड बिकॉज यू वर सो पॉजिटिव, इसीलिए एकदम इजी पेपर लगा आपको, है ना? हाँ, तो यू थिंक दिस वॉज मैजिक, राइट? यू थिंक दिस हैपेंड बिकॉज यू थॉट कि एकदम इजी पेपर आएगा, यू आर प्रिपेयर्ड. या तो हम जब ऐसा एटीट्यूड रखेंगे ना, तभी हमको वो ईजी लगेगा. ठीक है, एंड यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि येस यूनिवर्स, मैंने कल ही प्रिपेयर किया. सी क्या इंपॉर्टेंट होता है, या दैट व्हेन वी आर, thank you, when you are, when you are feeling positive, then the universe responds to that, and you have to be appreciative कि yes, मैंने ऐसा सोचा, मुझे उसका रिजल्ट मिला ऐसा, and you are thankful for it. Okay, it's like आपने मम्मा के लिए एक स्पेशल कार्ड बनाया. Okay, you took out time, 5 minutes, 10 minutes, half an hour, and you made a special card for her on her birthday, or New Year's, I don't know. And if mama appreciates it, you will feel nice ना, है ना? तो बिल्कुल यही है, आपने कुछ चाहा और यूनिवर्स ने या भगवान जी ने आपको वो दे दिया. सो यू हैव टू बी अप्रिशिएटिव, यू हैव टू एक्नॉलेज इट. ठीक है, तो कुछ भी लाइफ में अगर अच्छा लग रहा है, कुछ भी फॉर यू, आपने उसके लिए चाहा हो चाहे नहीं चाहा हो, अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो यू हैव टू बी थैंकफुल. Okay, so these two things are very important, that you have to be thankful no matter what, and especially if something is going right in your favor. Yeah. So okay, so I think Tanishka, आज हम और आप ही करने वाले हैं 10 little fingers. So we'll start with that and we will do today's session. Okay, so yes, please unmute yourself, everyone else also. और आज तो last day है, Mr. Spiderman, I would like to see your face also. Yeah, so let's start. So 1, 2, 3, start. Happy. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes. So I'll share the screen and let's see. Sometimes I also wonder what kind of, not what kind of things. It's like some things that I want to share with you. That is what I write in my PPT for the day. Yeah. So हम लोग यूनिवर्स की बात करते रहते हैं. What is this universe? हनी ने पूछा था यूनिवर्स और भगवान जी एक हैं, आज वो अभी आती होगी. What as per you is universe?
अगर हम लोग इस सेशन में नहीं आते होते, बिफोर आई से कि हाँ यूनिवर्स हमको देता है, उसके पहले आपका यूनिवर्स के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग था? Ma'am, something which has no limits. Something which has no limits. Oh, wow, sorry, very nice. Yes, and what is there in this universe? God, everything we need. Yes. हाँ, यूनिवर्स में प्लांट्स, ट्रीज, प्लैनेट्स, कंट्रीज, ये सब बातें। अगर आप न्यूज़ में कुछ सुनते हो तो आपको क्या लगता है मन में? यूनिवर्स वो होता है जो हमारी सारी विशेष पूरी करता है, हमारे हम्म, पूरी करता है, और हमारे जो भी मतलब जैसे कि जो भी डिजायर्स है सब कुछ वो पूरा कर देता है। ये तो तनिष्का हम लोगों ने अभी सीखा है। आप हमेशा से ही ऐसा मानते थे कि अभी आपने समझना ऐसा शुरू किया? मुझे करती है तो मुझे भी पता था। ओके, वेरी गुड। तो मीन्स आप घर में मम्मा पापा की बात सुनते थे मैजिक और ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वेरी गुड। जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हमको ये जो हम समझते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, यूनिवर्स इज लाइक एवरीथिंग अराउंड मी, दैट इज़ यूनिवर्स। उसको कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ वो इतना ऑल पावरफुल, ऑल माइटी है, वो हम नहीं सोचते थे। भगवान जी हैं, ऊपर कहीं पे हैं। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू फील। ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड reading this, I understand of course that mother nature is so powerful, it is so, she's so powerful, इतना कुछ हमको देती हैं, ठीक है। बट हमने उनको इस तरीके से कनेक्ट नहीं किया था जैसा हमने इन बुक्स में पढ़ के समझा, इन सेशंस में सुन के समझा, हम वैसा नहीं समझते थे। तो फॉर मी इट वाज ऑलवेज लाइक कि यूनिवर्स हम नहीं सोचते थे, लाइक ठीक है दुनिया में बहुत कुछ है, अच्छे हैं, गंदे हैं, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, सबके अपने कर्म होते हैं। जैसा हम लोग हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग समझते हैं ना, इट इज़ लाइक आर कर्मा। हम अपने कर्म खराब मत करो, गंदी बातें बोल के दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, राइट। दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स, yeah, that we have to speak good, we have to be nice, and all this now I am understanding better because of this law of attraction, because what we are sowing is what we will reap, what we are doing is what we will attract. It's like जो हम देंगे हमारे लाइफ में वही घूम के आएगा। सो ये जो लॉ ऑफ कर्मा, इट इज दिस ओनली। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे लाइफ में वही घूम के आएगा। हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारे संग भी अच्छा होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड लेटर ऑन। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स दैट यस, कर्मा, law of attraction is all same. Like if today I am a good human being, tomorrow my life is going to be better. Okay, this is what I started understanding. So now अभी हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग और क्या समझते हैं। So when I'm saying about the world, what do you focus on? आप वर्ल्ड के बारे में क्या बोलते हो कि वर्ल्ड एक अच्छी जगह है, गंदी जगह है? आप क्या बोलते हो वर्ल्ड के बारे में कि कंट्रीज अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, नेचर अच्छा है, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू से? यूनिवर्स हम समझ गए, आप सोचते हो कि यस ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, सब कुछ जो हमारे पास है वो है। अब वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप क्या बोलते हो कि दुनिया अच्छी है? दुनिया हम लोग बोलते हैं ना, इट्स लाइक हाउ वी टॉक एट होम कि दुनिया बहुत खराब है। आप क्या सोचते हो? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट दैट? Ma'am, it's mixture of both good and bad, depending upon how you look. Your point of view depends the most. यस यस, वेरी नाइस कनिष्का। सो ये अभी से ही था कि हमेशा से ही था? मैम, ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला तो हमेशा से ही है। घर वाले बोलते हैं कि ऐसा ठीक है। हाँ, ओके, वेरी गुड। सो व्हाट हैपेंस इज, सब चीज़ें दुनिया में है ना, इट इज़ लाइक यू हैव द वर्स्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड and you have the best of the people in the world. What we focus on is what we will get in our life. Okay, like दुनिया में आप देखो ना, ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, टेररिस्ट भी हैं, बट अच्छे लोग भी हैं ना, है ना। There's so many people. When we are looking at the news, when we are looking at the newspaper, they are talking about 6 to 7% of what is happening. They are not talking about the millions of good things that are happening, that so many people are helping others, so many people are letting people cross the road. आपने ये देखा है, रोड पे रुक जाती है cars when people are crossing. I'm not talking about Indians, okay, but mostly abroad if you see, people stop their cars to let the people cross the road. हाँ, इंडिया में भी होता है, बट मोस्टली क्या होता है, लोग सबको अपना आगे ही जाने में लगे रहते हैं। सो व्हाट डू वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स कि इसने उसको टक्कर मार दी, इसने उसको कुचल दिया। ओके, नो वन इज राइटिंग अबाउट द गुड डीड्स इन द न्यूज़पेपर। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट सेंसेशनल।
Yeah, people like to read thrillings and sensational kind of things. So, and that is what makes newspapers sell, that is what is making people watch news. So what we have to understand is what we are seeing on media is not 100% true. It is true, but it is just a part of the truth. So we are not to give attention to it, because whenever we are giving attention to it, we are expanding it, we are making it increase in our world, in our society. Okay, so whenever you are reading the news, when you should not say, oh ho kitna bura ho gaya uske संग ऐसा नहीं होना चाहिए. No, it is just 1/6 of what is actually happening in the world. And if you are paying attention to that 1/6, what will happen? It will increase. We don't want that. So what you have to do is, when you're reading it, when you're listening to it, you just have to be like a, कैसे बोलते हैं ना उसको, onlooker. You just have to see and ignore. You don't have to give feelings to it. You don't have to be very strongly vocal about it, because whenever we are focusing our energy on that, we are increasing that. Okay, तो आप ये समझो, जो भी न्यूज़ में पढ़ रहे हो, गंदी चीज़ें पढ़ रहे हो या दिख रही हैं आपको क्या करना है? I've added that also in the list. So what you focus on expands, increases. तो माने अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हाँ, इट्स लाइक यू माइट हैव सीन ना कि लाइक कितने बार न्यूज़ में आता है इतना बड़ा एक वाटरमेलन हो गया है, कि पंपकिन कहीं पे हुआ है, या कहीं पे कुछ ओपनिंग हुई है, तो वी शुड बी रीडिंग अबाउट दैट, वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट. बट क्या होता है, वो बहुत अच्छी बातें होती हैं, दे डोंट एक्साइट अस. So we tend to not read about that, we tend to not talk about that. या आपने देखा होगा कि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं कि कहाँ पे फ्लड आ गया, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, कहाँ पे सुनामी आ गया. वी आर फोकसिंग ऑन दैट इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑन कि यस यहाँ पे इतनी ज़्यादा फसल हुई है, इतना ज़्यादा टर्नओवर हुआ है. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. We are only reading about things which are titillating us. So we should be reading that, but not focusing on that. आप उसको भी पढ़ो, but कम पढ़ो. See that you don't put your feelings into it. Okay? So why? Because this is the reason. What we are focusing on expands. आप सोचो ना, न्यूज़पेपर में सिर्फ वो 6% दुनिया की जो बातें होती हैं, वो पूरा न्यूज़पेपर उससे भरा रहता है. And how many people read the newspaper? So many people. I'm not talking कि हाँ घर में बहुत लोग पढ़ते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर रीडिंग दैट. सो व्हाट इज हैपनिंग, एवरीवन्स एनर्जी इज ऑन दो 6% ऑफ नेगेटिव थिंग्स. तो वो ही चीज़ें बढ़ रही होती हैं. इंस्टेड व्हाट शुड वी बी रीडिंग कि ये स्पोर्ट्स में कितना अच्छा हुआ है, हमारा टर्नओवर कितना अच्छा हुआ है, हमारी इंडस्ट्री कितना अच्छा करी, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने कितना अच्छा किया है. वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट. हाँ, यस कनिष्का. मैम आई हैव अ डाउट कि डज दैट मीन कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर पाता है कंपैरेटिवली पॉजिटिव चीजों को? नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज़ लाइक व्हाट फ्रीक्वेंसी वी आर ऑन. ओके, आप देखो कई लोग होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डार्क थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दे आर इन दैट फ्रीक्वेंसी. दिस यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू are clear कि yes, whatever frequency you are on, it's like if I am on a low frequency, see, I will be thinking about drugs, I'll be thinking about some sadist things when I am on that frequency. If I'm in a happy state, will I be thinking of those things? No. If I am low and sad, you must have seen in movies, when do people get attracted to a circle which is not so positive? When they are in a low zone, when people are high, upbeat, focused about their passions, whether it's sports or studies, do they get attracted to those things? No, they get attracted to that when they are in a lower frequency. Okay, so when they are on the lower frequency, then only they get sucked into that low zone. Okay, it is all there everywhere, but what attracts us is whatever frequency we are on. आपने देखा है स्कूल में people who like reading books, उनका ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बन जाता है. वाई? बिकॉज दे आर ऑल ऑफ दोज इन दैट फ्रीक्वेंसी. जिनको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है उनका ऑटोमेटिक ग्रुप बन जाता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है. सपोज आई लाइक स्पोर्ट्स, ओके, एंड आई ऑल्सो लाइक स्टडीज, but if I am focusing more on sports, gradually my reading circle will become, I will start going away from them and I'll go towards my sports group. So that is why that happens, because I am on the frequency of sports a little more. Okay, so same way, if I am in a negative frequency, I will attract more negative things in my life. Okay, and then I will get sucked into the circle where things are not so positive, where drugs are there, where cheating is there, where lying is there, and I'll get attracted to that also, because I am low, I am maybe not feeling positive about my life, my studies, my parents. I'll gradually gravitate towards that. So that is why we have to keep our frequency high. If I am on a happy zone, if I am in a good zone, I will
gravitate towards something which is nicer and positive in my life. Okay, so that is why it is important. We know ये अच्छा है, ये बुरा है, बट क्यों ऐसा होता है कि हम लोग ऑटोमेटिकली वहाँ खिसक के चले जाते हैं, या ऑटोमेटिकली जब हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं देन वी कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो. या सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी. ये जो नज़र लगने वाली भी बात आप लोग ने पूछी थी ना, वो यही थी. नज़र लगना या ब्लैक मैजिक, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. इट इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड. या आप बोलोगे घोस्ट हैं, ये है, वो सब कुछ है दुनिया में. मेरे लाइफ में वो आएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे हम रहेंगे. इफ़ आई एम फीलिंग सैड, लो, मेरे को नज़र लगेगी बिकॉज मेरी फ्रीक्वेंसी वैसी है. सो वॉट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू बिल्ड माई शील्ड ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, जितना ज़्यादा हम अपने आप को खुश रखेंगे. सबके लाइफ में, कनिष्का, आई एम टेलिंग यू, आई एम मच एल्डर टू यू, मे बी योर मॉम्स एज और इवन एल्डर. कितना कुछ होता है लाइफ में. ओके, इट्स लाइक यू हैव, इट्स लाइक, बहुत अच्छा कोट है. आपको पता है हार्ट लाइन कैसे चलती है? हार्ट बीट लाइक दिस. या ऐसे कब होती है? मैंने यो गॉन ना. तो अगर अप डाउन नहीं होगा लाइफ में तो लाइफ नहीं होगी ना, डेड हो जाओगे आप. अप डाउन लाइफ में आएगा ही आएगा, दिन रात होगा ही होगा, है ना. एवरी नाइट देयर इज डार्कनेस, एवरी मॉर्निंग देयर इज सनलाइट. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लुक एट द स्टार्स एट नाइट, या, एंड वी हैव टू वेट फॉर द सनलाइट. तो लाइफ में आएंगे ही अप डाउन, चैलेंजेस आएंगे, फ्रेंड्स से फाइटिंग होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, बट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इन द पॉजिटिव जोन सो दैट वी बिकम द, व्हाट इज इट कॉल्ड, द विनर, द पर्सन हु ओवरकम्स ऑल दैट. ओके, आएगा ही. दिस इज लाइफ. हाँ, हम लोग सबको यहाँ पे कुछ सीखना है, सब कुछ. जब वो सीख के हम आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. आप तो सोचो ना, हैव यू रेड अबाउट कलाम? उनके लाइफ Yes, में, ma'am. या, एंड सी वेरी रोज, या, वेरी वेंट. कैसे हुआ ये? वो सोचते नहीं मैं कैसे हूँ, मैं तो मछुआरा का बेटा हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो स्कूल ये नहीं है, वो नहीं है. ही वुड नेवर हैव रीच्ड वेरी रीच्ड. सो एवरीवन शाइन्स. हाँ, आपको पता है डायमंड इतना शाइन क्यों करता है? कितना उस पर फ्रिक्शन Yes, करा yes, जाता है, ma'am. कितना उसको पॉलिश किया जाता है, तभी वो डायमंड बनता है. वरना क्या रहता, कोल ही रह जाता ना. या, सो दैट इज वाई वी are given all these circumstances so that we shine and, you know, sparkle. Okay, so if we understand this then only we'll make an effort कि नहीं, this is just a frictional phase, हमको उसको निकल के आगे निकलना है. Yeah, so yes, thank you for this question. Yes, Thank Sunny. you so much. Yeah, yes, Sunny, you have a question? यस मैम, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक मैथ का टेस्ट दिया है, वो हाँ. अच्छा भी गया है, हम्म. बट मैम आप सपोज उसमें पॉजिटिव माइंड रखते हो कि हाँ आपको उसमें 20 ही मिलेगा, लाइक 20/20 है तो आपको उसमें 20 ही मिलेगा. तो मैम लाइक आपने पूरा अच्छे से दिया है, तो लाइक मैम उससे वैसे हो सकता है क्या काइंड ऑफ? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम नहीं आंसर करेंगे. ओके, यू टेल मी, हाँ ऐसा हुआ है, अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो. ये मैथ्स के पहले आपने कैसे बीज बोए हैं मैथ्स के बारे में? हैव यू बीन क्रिविंग अबाउट योर टीचर, अबाउट योर मैथ्स, अबाउट एनीथिंग? आई डोंट नो, है ना, कि एक मैथ्स का मैंने 20/20 एग्जाम दे दिया एंड आई एम पॉजिटिव और नेगेटिव. नो, आई डोंट नो कि यूनिवर्स आपका तराजू कैसे बैलेंस कर रहा है, या आपने अपने तराजू में इधर नेगेटिव डाल के रखा है, उधर पॉजिटिव डाल के रखा है. आई कांट से दैट. ओके, सो दिस इज वेरी, व्हाट इज इट कॉल्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ यू. ओके, इट इज लाइक बहुत सारी चीजें. दीज सेशंस 10 days तो बहुत ही कम होता है वैसे, और आज तो लास्ट में यू आर आस्किंग दिस हनी, ठीक है. व्हाट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. इट्स लाइक आपने देखा है, आप रोड पे जा रहे हो, हाँ, अश्विनी मैम इसका ये वाला एग्जाम्पल बहुत देती है, बिकॉज आई एम श्योर इस टाइप के क्वेश्चंस कई लोगों के मन में आते हैं, लाइक द वे यू आस्क्ड, कि रेड सिग्नल है, एक गाड़ी फटक से निकल जाती है, आप सोचो चलो मैं भी निकल जाती हूँ, फट से आप निकले, आपको पुलिस ने पकड़ लिया. इफ़ यू से वो भी तो निकल गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्या करेगी पुलिस? आपको छोड़ देगी, उसको पकड़ने जाएगी? यू मस्ट हैव सीन दिस ऑन द रोड, ऐसा हुआ है. हाँ, या आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, विल यू से मैम वो भी चीटिंग कर रही थी, मैम बोलेगी तुमको छोड़ो, ला उसको ही पहले पकड़ते हैं? शी विल से दैट? मैम रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये हुआ है. उसने बोला कि मैम उसको पकड़िए. सो नहीं हो सकता. इट इज लाइक योर कर्मा मेड श्योर दैट यू वर गॉट. उसके कर्मा से वो बच गया इस बार, उसने पिछले बार क्या अच्छे बीज बो के रखे थे, यू डोंट नो. सो यू कांट क्वेश्चन लाइक दिस कि मैंने 20/20 का एग्जाम अच्छा पूरा दिया फिर भी मेरे 20 क्यों नहीं आए या क्यों नहीं आएंगे. वी कांट से लाइक दिस बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज वी कैन नॉट कीप अ टैब कि मैंने क्या अच्छा क्या अननोइंगली किसी को हार्म कर दिया. ओके, सो वी कैन नॉट नो दैट.
what we have to do is we have to keep making an effort that knowingly, consciously we are doing right and are on the right path. ओके उसका सिर्फ एक ही ट्रैक रखना है, दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. ओके अगर एग्जाम गंदा भी होता है तो भी आई एम हैप्पी कि चलो ठीक है, इसमें भी कुछ अच्छी बात है. इट्स लाइक द यूनिवर्स नोज द बेस्ट फॉर मी. ओके सो दिस इज वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड. या ओके सो यस कनिष्का. मैम अभी आपने बोला कि अगर एग्जाम गंदा भी होता है तो हमको हैप्पी होना चाहिए, तो ऐसे तो फिर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड हर टाइम वर्क करता है तो हाँ. लोग मेहनत ही नहीं करेंगे तो ग्रैटिट्यूड ही करते रह जाएंगे कि मेरे अब साथ ये में तो तो ऐसा हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, सी इट इज लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन ईजी वे आउट, ये तब होएगा कि हाँ कोई क्यों मेहनत करे, ऐसा ही होगा वैसे ही होगा. इट इज लाइक सेइंग कि अगर मेरे किस्मत में लिखा है कि हम खाना खाएंगे तो मेरे सामने प्लेट रखी हुई है, बट आई विल नॉट यू नो यूज माई हैंड टू पुट इट इन माई, तो वो खाना उड़ के आपके पास नहीं जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहेगी. ठीक है, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट. इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू वैष्णो देवी, आपके नसीब में है कि आप वैष्णो देवी जाओगे, पर टिकट आपको करनी पड़ेगी. घर से निकल के आपको फ्लाइट में खुद आपको बैठना पड़ेगा या बस में बैठना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा. बट क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रैटिट्यूड क्या करता है, इट मेक्स द पाथ ईजी फॉर यू. ओके बट यू हैव टू वॉक, you have to take the flight and you have to do the tickets. okay वो करना पड़ेगा हमको, but it will be much more smoother for us. okay that is how it happens. it's like आपने देखा है कि कई जन होते हैं एकदम सब कुछ स्मूथ जाता है उनके लाइफ में. इट्स लाइक इवन व्हेन दे गो टू द एयरपोर्ट, उनका 1-2 kg ओवरवेट भी होता है लगेज, यू नो द फ्लाइट पीपल लेट देम गो, उनको कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, सब कुछ उनका स्मूथ चलता रहता है. और कभी कभी हमारे संग क्या होता है, 1 किलो के लिए दे विल आस्क अस कि नहीं मैम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करिए या आप एक्स्ट्रा बैगेज का पे करिए. फिर आप फ्लाइट पहुँचे तो आपने देखा आपके सीट के ऊपर की जगह भी नहीं है, यू नो, एंड कभी कॉफ़ी भी गिर गई या सामने वाला ऐसा जन बैठ गया दैट यू आर नॉट सो कंफर्टेबल सिटिंग. होता है ना, क्यों होता है? दिस इज ऑल हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. okay so it is not that things will not happen. Things will happen, but they will be much more easy and smooth for you. This is how gratitude happens. There were people in my session, in the magic session, जिनका 15 kg, can you imagine, 15 kg भी एयरलाइन ने बोला ओके टेक इट. 15 kg एक्स्ट्रा बैगेज. हाँ, there was this girl, उनकी डॉटर थी इन अहमदाबाद. ओके शी वॉज गोइंग टू द हॉस्टल, लास्ट ईयर की बात है, वंशिका. एंड उसकी मम्मा बोली क्या करें. आई एम लाइक सो हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इतना एक्स्ट्रा बैगेज हो जा रहा है बिकॉज यू नो शी इज़ गोइंग टू द हॉस्टल, उसका इतना सारा सामान है. सो आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि कैसे होगा. सो देन आई सेड ओके लेट्स यूज ग्रैटिट्यूड. सो आई टोल्ड हर, उसमें एक प्रैक्टिस है दैट यू आर सो थैंकफुल टू द एयरलाइंस दैट दे हैव अलाउड माई एक्स्ट्रा लगेज टू बी यू नो एक्सेप्टेड विदाउट एनी पेमेंट. और एक्चुअल में ये हो गया. आप सोचो, जितना भी आप रिक्वेस्ट करते रहो अच्छे से बोलो, हर बार नहीं होता है बट उसका हो गया. इसके पहले इसी लास्ट मंथ में देयर वाज दिस मधु जी, आई थिंक मधु जी ओनली, वो भी कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो उससे मेरा बहुत नहीं बेला जी, उनकी डॉटर की एंगेजमेंट हो गई थी एंड शी वाज ट्रैवलिंग टू आई थिंक गुवाहाटी या दार्जिलिंग या शिलोंग, आई डोंट नो, सम नॉर्थ ईस्ट कंट्री, नॉर्थ ईस्ट सिटी. तो उन्होंने बोला क्या करें, तो मैंने तुरंत उनको ये एग्जाम्पल दिया. ट्रस्ट मी, उन्होंने भी शेयर किया कि उन्होंने ऐसे ही पूरा सबको ग्रैटिट्यूड करती रही वो कि दिस इंडिगो. एंड सोचिए, इंडिगो इज सो नाइस, दिस यू नो द पीपल ओवर देयर आर सो गुड एंड काइंड. उन्होंने पूरा मेरा उनका भी लगेज क्लियर हो गया. सो हाउ डज दिस हैपन? मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड. वो सिर्फ सोचती थी नहीं कि मैं तो भैया तोप हूँ, मैं तो विजुअलाइज कर रही हूँ मेरा हो जाएगा. नहीं, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड, तब ये सारी चीज़ें होती हैं. Okay, so this is how it happens. We keep on practicing gratitude, and when we see these results, our faith in them increases. Okay, and then we use it more. That is how it happens. So this is how the law works. Okay, because what you focus on expands. अगर हम सोचते हैं कि yes, people are nice in the world, people are kind in the world, so actually nice, kind, positive people will come into your life. या आपने देखा है कितने बार आपको सेल्स गर्ल मिलती है जो आपको एक बूंद भी हेल्प नहीं करती है, और आपकी फ्रेंड को सेल्स गर्ल मिलती है, वो बोलती है अच्छा पता है ये वाला सामान लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, चलो ये 2 चीज़ों ले लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. क्यों ऐसा होता है? कोई एक जन को हेल्प करता है, सेम स्टोर का बंदा, और दूसरे जन को हेल्प नहीं करता है. because this is how the law works. What you are thinking, what frequency you are, what you think about the people, you attract that kind of people in your life. Okay, so what we are here talking about is like we should be focusing on the good. ठीक है, see, and अभी हम लोग, आप लोग छोटे हो, हाँ,
इट इज़ नॉट दैट कि इसी जन्म में आपके जो कर्मा है उसका रिजल्ट मिलता है. नो, व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट. आपको सोल के बारे में पता है? ऑल ऑफ यू नो अबाउट सोल? या अच्छा, सोल क्या होता है? सोल इज समथिंग दैट इज इनसाइड अस. या यू कैन से आई एम द सोल, और टेल मी इज दिस बॉडी द सोल? नो, द सोल इज समथिंग विच इज, एंड द बॉडी इज द कैरियर. या आपके घर में कोई कार है, सबके घर में या कोई ना कोई व्हीकल होएगा, राइट? आपके व्हीकल का कुछ चलान हुआ, ठीक है, तो कैन यू से कि नहीं नहीं इस गाड़ी को हम छोड़ देते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं? चलान किसके नाम पे होता है? गाड़ी के नाम पे होता है कि ओनर के नाम पे होता है? ओनर के नाम पे होता है. या तो अगर आपके स्कूटर से, कार से टक्कर होती है, हाँ टक्कर हो गई उस कार से, लेकिन आपने वो गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी ले ली, तो वो जो चलान कटता है वो आपके नाम पे कटता है. सो दैट इज वाई द सोल, वट एवर कर्मा दैट यू हैव डन इन द पास्ट बर्थ ऑल्सो, या यू आर कैरिंग दैट इन योर नेम्स चलान. तो इस जन्म में आपको वो सफ़र करना पड़ेगा या उसको एंजॉय करना पड़ेगा. वाई इज इट दैट समवन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून? टेल मी. एंड सम पीपल हैव टू स्ट्रगल टू गेट समथिंग टू ईट. उनके पास जन्म के टक्कर इस टाइप के हैं, या उनके पास जन्म की कर्म इस टाइप के हैं. सो आई थिंक ये थोड़ा सा सादा हो जा रहा मैम है. बट ऐसा बोलते हैं ना कि ये कलयुग है तो यहाँ पे ही सब भोगना पड़ता है वाला है. यहाँ नहीं पे जो नहीं कर्म आप जो बुरा कर रहे हो आपको यहीं पे भोग के जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप बाद में कभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, कलयुग में है, बट क्या है कि सपोज इन दिस बर्थ आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, इन दिस बर्थ आई हैव डन सो मच गुड. हाँ हाँ, इट आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरा सेल्वेशन होके मैं सीधे जाके भगवान जी के संग आई विल कनेक्ट, बिकॉज दैट इज आवर अल्टीमेट गोल, दैट विल कनेक्ट विद द डिवाइन, या दैट विल कनेक्ट विद द परमात्मा. बट अगर हमने इतना अच्छा किया है, कुछ कुछ तो गंदा हम करेंगे ही ना, राइट? कुछ कुछ तो किया ही होगा हमने, तो वो हमको नेक्स्ट बर्थ में करना, भुगतना पड़ेगा. लेकिन नेक्स्ट बर्थ भी तो कलयुग ही है, राइट? एंड व्हाट विल हैपन, and I'm so good in my deeds in this life that in my next life maybe I am born in Ambani's house. I don't know. Then how will my life be? All riches, glory, nice, right? It will be like that. So this is how it happens. हमको यही भुगतना पड़ेगा. हम अच्छा करेंगे तो भी हमको यही भुगतना पड़ेगा. It does not mean कि इसी लाइफ में, okay? But till the time I connect with the soul, I'll have to keep on, experiencing whatever I am giving to the world. Okay, I think like this is enough. Let's focus on the session and then we'll continue on this topic. This is like a huge topic and I think you guys are too मेरे को भी नहीं उतना पता है, and you guys are wanting to go into that. Yeah, so let's read, नहीं, let's focus. Yeah, so now who is saying this? Yeah, it cannot. Yeah, Albert Einstein is saying the world we have created is a product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. It's like we attract, we have created whatever we are thinking. Like it's our thoughts which have this power. And अगर अभी मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो क्या करना है मेरे को? We just have to change the channel. We just have to change the frequency. We just have to change our thinking, and my life will change. My world will change. Okay? And Albert Einstein कह रहा है. Albert Einstein is a spiritual person or is he a scientist? Who is Albert Einstein? साइंटिस्ट. नो ही इज सेइंग कि थिंकिंग चेंज करने से दुनिया बदल जाती है. जबकि अगर आपको ये नाम नहीं पता हो तो आपको लगता है पक्का ये कोई साधु बाबा है, राइट? बट ही इज सेइंग इफ वी चेंज आवर थिंकिंग वी चेंज आवर वर्ल्ड. या तो अगर हमारी जैसी भी अभी लाइफ चल रही है, सम पीपल विल से नहीं तुमको तो पता ही नहीं मेरे लाइफ में कितना टेंशन है, मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मा ऐसी, मेरी स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरा स्कूल ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरी हेल्थ ऐसी है इतनी सारे मेरे लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं. व्हाट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज सेइंग कि जो कुछ भी चल रहा है वो मैंने क्रिएट किया है. कैसे क्रिएट किया है? बिकॉज ऑफ माई थॉट्स, बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग. एंड हाउ डू आई चेंज इट? Again by changing my thoughts and feelings and thinking. Okay, so that is how powerful thoughts are. If we change our thoughts, we change our frequency, and whenever we are changing our frequency, we are changing the world. Okay, world in the sense like what the world is to me. Yeah, okay, yes honey, you have a question? मैम हम लोग 10 little fingers नहीं कर देंगे? Oh yes, किया तो था हमने हनी, आप देर से हम लोगों ने कर लिया. ओके मैम. Okay, I thought अभी हम लोग कुछ इसके बारे में बात करें. We did it. I think you just before you came to the session we did that. Yeah.
Okay, so you have understood how important it is that we change our thoughts and we change our thinking. Yeah, so next we are going to read is send blessings, love and thoughts of abundance if you hear, see, read something that is not very positive. माने आप न्यूज़ में कुछ भी सुनते हो, कुछ भी देखते हो, कुछ लैंडस्लाइड हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम लोग नॉर्मली क्या बातें करते हैं, ये कंट्री तो है ही ऐसी, टेररिस्ट लोग तो होते ही बदमाश, उनको छोटे से ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और देखो उनको क्या फ़ायदा हुआ, वी टॉक अबाउट दिस। कुछ लैंडस्लाइड हुआ या कुछ फ्लड हुआ या फेमिन हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट तो है ही ऐसी, देखो कितने बेचारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वी आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव. What we have to do is, if we want to change the world, if we want to make the world a happier place, what we have to do, जिसके संग भी हो रहा है, क्या करना है हमको उसको ब्लेसिंग्स देनी है, लव देना है एंड पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, सपोज कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ, क्या बोलोगे, जहाँ भी हुआ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि कितना नुकसान हुआ, आप देखोगे 10 लोग बचे हैं, थैंक यू भगवान जी, ये लोग बच गए हैं, आई जस्ट होप उनके घर वाले हेल्दी हैं, फिट हैं और ये लोग जाके अपने फैमिली के संग हैप्पी रहें, ठीक है। गवर्नमेंट देखो फिर भी बचा रही है, पुलिस देखो फिर भी कुछ इतना कुछ कर रही है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, ओके। So you are clear, if you want to make a change in this world, this is how we have to do it. Instead of focusing कि नहीं गवर्नमेंट तो है ही करप्ट, गवर्नमेंट तो है ही बदमाश, देखो ऐसे कर रही होगी, वैसे कर रही होगी, no, we have to change on what we are looking at, and when we are looking at the things in a different manner, what we are looking at changes, okay. Yeah, so next what next what this, appreciate and be grateful to mother nature, she is forever giving and forever sharing. या तो अब हम लोगों ने ये बात कर ली कि न्यूज़ में हम लोग को जब बातें देखते हैं तो हमको क्या करना है, वी आर टू फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव, वॉट एवर वी आर लुकिंग एट, लिसनिंग टू, रीडिंग, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट मदर नेचर। आपने कभी देखा है कि पेड़ में जो मैंगो निकले होते हैं वो बोलते हैं नहीं तुम मुझे पैसे दोगे तो ही मैं ऊपर से टपकूंगा, टेल मी, हैव यू हर्ड इट? नो, है ना, इट्स लाइक दे आर ऑलवेज गिविंग। फ्लावर्स जो होते हैं, आर दे वेटिंग कि कोई आके मुझे स्मेल करेगा तो ही मैं अपनी खुशबू फैलाऊंगा? नहीं, वो पूरा टाइम देते रहते हैं, वेदर इट्स फ्लावर्स, वेदर इट्स ट्रीज, दे आर ऑलवेज गिविंग, एंड दैट इज हाउ मदर नेचर इज, दैट इज हाउ द ऑलमाइटी मेड द यूनिवर्स फॉर अस, कि हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है, कि इतना कुछ है, सब कुछ है, पूरा टाइम फ्री मिल रहा है। कभी आपको लगा कि मैं ज़्यादा सांस ले लूँगा तो मेरा बाजू वाला सांस कैसे लेगा? कभी सोचा आपने कि मैं आज ज़्यादा सांस ले लूँगा कल मुझे सांस मिलेगी कि नहीं? ये हम लोग पैसों के बारे में सोचते हैं, फ्रूट्स के बारे में सोचते हैं, मिठाई के बारे में सोचते हैं, बट डू वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स व्हेन वी थिंक अबाउट मदर नेचर, कि आज सनलाइट ज़्यादा है तो कल कम हो जाएगी? वी थिंक लाइक दैट? नो, बिकॉज मदर नेचर इज लाइक दिस, इट इज़ always giving us full heartedly hamesha, whether it's the trees, air, sun, sky, clouds, everything is always for us. So what we should be doing, we should be first and foremost thankful for mother nature, है ना। जब हम उन 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमको उनके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? जब हम उनके लिए थैंकफुल होंगे तो हमारे लाइफ में भर के सारी चीज़ें हमेशा आती रहेंगी, ओके। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ वी ट्राई टू जस्ट लर्न फ्रॉम मदर नेचर, हम लोग मन से अप्रिशिएट करें लोगों को, ठीक है, हमेशा दें। उसमें क्या जाता है किसी को अप्रिशिएट करने में, टेल मी? पहले हम लोग सोचते ना अप्रिशिएट करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, पहले हम सोचते अरे उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हाँ, मन में कर देते थे, कभी सामने से नहीं करते थे। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मोर, पहले लगता था मेरे पास नहीं है, उसके पास है। नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज व्हेनेवर आई सी समथिंग नाइस, आई विल से वाओ कितनी अच्छी चीज़ है उसके पास ना, इट इज़ सो नाइस, शी इज सो ब्लेस्ड, एंड व्हेन आई एम डूइंग इट, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम अट्रैक्टिंग दैट इन माई लाइफ। That is how the law of nature works. Appreciate and it appreciates in your life, okay? So we have to learn this from mother nature. Just keep giving. आपने सुना है कि मैंगो खत्म हो रहे हैं? कभी सुना है आपने कि एप्पल खत्म हो रहे हैं वर्ल्ड में से? नहीं, हमेशा रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो देते रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा ही रहेगी, जितना भी लोग फोकस कर रहे हैं अरे ट्रीज कम हो रहे हैं, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव दिस, नहीं, वो हमेशा ही रहेगा। आप सोचो, सब लोग बोलते हैं सेव वाटर, कितना वाटर है अर्थ के ऊपर? 70 to 75%। कहाँ ख़त्म हो रहा है? हाँ, लैंड से ज़्यादा तो वाटर है, कहाँ ख़त्म हो रहा है? उसको प्रोसेस करेंगे, वो ड्रिंकेबल हो जाएगा,
है ना, यही तो है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट है हमारे पास। हाँ, रेन होती रहती है हमेशा, कहाँ पानी खत्म हो रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लैक, वी हैव टू फोकस ऑन द abundance. Okay, so yes, let's read the next point. Things appear when asked for. Okay, like all inventions and discoveries. हमने ये पढ़ा था ना, ask, believe, receive. ये secret का एक कोड है, पहले आपको ask करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे जो फर्स्ट डे पे लिस्ट बनवाई थी कि आपको क्या चाहिए, दैट इज ask। हाँ, अब आप things appear when asked for, आप देखो ना, जैसे हमने इसके बारे में बात की है, सोलर पावर लोगों ने अभी डिस्कवर किया है ना, सोलर एनर्जी, बट क्या सनलाइट पहले नहीं थी? टेल मी, कब से है सन? हमेशा से ही है सन। आई डोंट इवन नो कि कब से है सन, बट सोलर एनर्जी लोगों ने अभी डिस्कवर की है। व्हाट इज दिस? जब हम चीज़ों के बारे में मांगते हैं, पूछते हैं, तभी हमारे लाइफ में आती है। अभी जो इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, जो डिस्कवरीज हुई हैं, वेदर इट इज़ यू नो द वैक्सीन्स, दिस दैट, ये कब होती हैं? जब लोग दिल से उसके बारे में मांगते हैं, जब लोग दिल से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी वो हमारे लाइफ में आती हैं। चाहे वो पैस्चराइजेशन हो या कोई भी वैक्सीन हो, ये सब कहाँ पे था? ये हमेशा से ही था। जिन टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, दे वर ऑलवेज देयर, बट वो हमारे दिमाग में कब आई, कैसे हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हुई? व्हेन वी स्टार्टेड आस्किंग फॉर इट, व्हेन वी स्टार्टेड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देम, देन दे अपीयर्ड इन आवर लाइफ। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, वेदर इट इज़ द स्टिच क्लॉथ, कुकिंग। आप देखो ना, ये मेरे को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगता है, मैंने मैजिक सेशन में भी दिया था। सो मैनी पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस कि उनको हेल्दी खाना खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, तो क्या इन्वेंशन हो गया? एयर फ्रायर, है ना, तभी हुआ ना, पहले भी हो सकता था, बट एयर फ्रायर तभी आया व्हेन समवन हु सो मच इन लव ऑफ फूड और उसको हेल्दी भी खाना था, उसने एयर फ्रायर इन्वेंट कर दिया। सो थिंग्स अपीयर इन लाइफ व्हेन पीपल आस्क फॉर इट। ओके, तो ये हमने क्यों लाइन बोली है? Because when you ask for your thing, then it will appear in your life. Okay, so you have to understand this कि जब तक आप मांगोगे नहीं, किससे? भगवान से, सुप्रीम पावर से, और दिल से नहीं मांगोगे, तब तक वो लाइफ में नहीं आने वाला। या इट्स लाइक हाफ हार्टेडली, मिल भी जाएगा तो अच्छा, नहीं भी मिलेगा तो अच्छा, यू नो, तब नहीं मिलने वाला। ओके, यस, या व्हाट आर यू इन्वेंटिंग, एडिंग, आस्किंग फॉर? आप सोचो, इतने सारे लोग जो दुनिया में हैं, उनके थॉट्स किस टाइप के हैं? इफ़ दे आर पॉजिटिव थॉट्स, आपको पता है ना, भूटान में हैप्पी क्वोशंट देखा जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? भूटान में ही है ना, या यस। तो क्या जैसे लोग सब सोच रहे होते हैं, वैसे ही कंट्री की थिंकिंग, लोगों की थिंकिंग हो जाती है। तो हम और आप, लाइक ऑल ऑफ अस प्रेजेंट है, व्हाट आर वी थिंकिंग, व्हाट आर वी इन्वेंटिंग, व्हाट आर वी एडिंग टू दिस वर्ल्ड? हर दिन आपको पता है, हर जन दुनिया क्रिएट कर रहा है। आपको बोले कि यू हैव द पावर टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, दिस होल वर्ल्ड। आप बोलोगे मैं तो एक टाइनी सी हूँ, देयर हाउ मेनी, कितने 1.3 कितने लोग हैं ना, अगेन आई फॉरगेट, कितने सारे लोग हैं, और उसमें से मैं क्रिएट कर रही हूँ दुनिया। यस, यू आर क्रिएटिंग। हाउ? बाय योर थॉट्स, बाय योर फीलिंग्स, यू आर क्रिएटिंग द वर्ल्ड। Okay, so now choose, what are you creating? Are you creating a positive world for yourself and the people around you? है ना? It is so easy to choose and decide कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना, ये गंदा है, वो गंदा है। It is so easy to say. What is challenging? To find the positive in it, है ना? It must have been so easy for Gandhi ji to say ना कि चलो सब लोग चल के लड़ाई कर लेते हैं। What was easier? Violence or non-violence? हाँ? Violence was easier, but what did he choose? Non-violence. And what happened? The country became free. So what we have to do is we have to choose our thoughts, we have to create a positive world. And how does it start? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा ना। तो when we are focusing on our thoughts, when we are focusing on our life, on each day, and we are creating our world, our week, our life, okay, and that is how the whole world starts becoming happier, positive. Okay, so this was it, that you have to choose positive and happy thoughts, and you are creating a happier, positive world. जब आप खुश और हैप्पी मूड में होते हो तो क्या होता है? आप अपने भाई बहन से भी अच्छे से बात करते हो, मम्मा भी कुछ बोलती हैं तो यू आर हैप्पी। व्हाट हैपन्स देन? द होल फैमिलीज मूड इज हैप्पियर। पूरे फैमिली का मूड हैप्पी रहता है तो क्या होता है? दूसरा दिन भी अच्छा होता है। व्हेन दे गो टू वर्क, योर पेरेंट्स, और यू गो टू स्कूल, यू आर इन अ हैप्पियर जोन, you are happy, you interact with your friends happily, your parents interact with their staff happily. तो क्या होता है? ऐसे ऐसे करके ये हैप्पीनेस बढ़ती जाती है। How many of you have seen that movie जय हो?
जय होती ना सलमान खान वाली, कि एक काम अच्छा करो तुम 3 लोगों के संग अच्छा करना. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? यू सीन दैट मूवी? इट इज़ लाइक दैट, अ रिपल इफेक्ट, कि सलमान खान बोलता है मैंने तुम्हारी मदद की, तुम आगे 3 लोगों की मदद करना. सो इट इज़ लाइक इफ यू आर बीइंग काइंड टू one person, that other person also being kind to another person, and the ripple effect happens that everyone starts becoming kinder. When everyone is becoming kinder and nicer, don't you think the world will be a happier place? हाँ, लोग हर समय फाइटिंग झगड़ा नहीं करेंगे, थोड़े से और अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग होंगे. ओके, सो हाउ डज इट स्टार्ट? बाय आर थॉट्स, बाय माई थॉट्स. हाँ, हम अच्छे से अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं, तो वो घर जाके भी अच्छे से बात करेगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्ट्स, जस्ट विद वन थॉट. ओके, सो या, so it is you with your thoughts who is changing the world. Okay, so live every day. What is life का मीनिंग क्या है? अलाइव बोलते हैं, हाँ, है ना? लिव एवरी डे. हाँ, लिविंग, हम लोग यहाँ पे जीने आए हैं, सर्वाइव करने, एग्जिस्ट करने नहीं आए हैं. हमको भगवान जी ने यहाँ पे भेजा है. क्यों? इतनी सारी सुंदर सुंदर कंट्रीज बनाई है भगवान जी ने, इतने सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स, फ्रूट्स, यमी चीज़ें पूरे दुनिया में भरी पड़ी हुई हैं. ओशंस देखो, ट्रीज देखो, फॉरेस्ट देखो, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग. तो क्या हमको वो यहाँ पे ऐसे ही जिसमें ना किसी तरह बस खाना पीना पढ़ाई लिखाई के अंदर करने के लिए आए हम लोग? नहीं, वी आर सपोज टू लिव हियर, वी आर सपोज टू एंजॉय दिस वंडरफुल अर्थ, है ना? एक लाइफ मिलती है हम लोगों को. बोलते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम लोग को ये लगता है ना, बट इट शुड बी फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन लिविंग लाइफ. इट शुड बी लाइक दैट. तो वी हैव टू लिव एवरी डे, कि दिन में आपने आज किसको हंसाया, किसको आपने मुस्कुराया, आप कितना हंसे, दैट शुड बी आवर फोकस. ओके, एंड व्हेन वी स्टार्ट लिविंग लाइक दैट, दैट इज लाइफ. नॉट कि हाँ हमारे पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं काम में, पढ़ाई में. नो, इट शुड नेवर बी लाइक दैट. वो सब करना है, बट संग में हाउ हैप्पी यू आर. ठीक है, हाउ कूल यू आर अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, दैट इज लिविंग. ओके, कहीं भी आपको लगे ना कि मे बी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं पता नहीं यहाँ पे, बट दिस इज व्हाट आई फील इज सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे गॉड मेड यू. व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज अ वेरी चबी चाइल्ड. ओके, कुछ था हेल्थ इश्यूज, आई वॉज वेरी चबी, especially chubby because both my sisters were skinny. Okay, like we are 3 sisters and a brother, and I am the middle sister. And अभी भी देखा जाए तो both my sisters are much thinner than me. So when I was growing up, I had this hang up कि I'm so chubby and they are so thin. Both of them have straight hair and I have this curly hair. Okay, and उन लोग की दोनों की नोज अच्छी है. I am like मेरे हमको लगता है कि कितने बार की वो मेरी सिस्टर्स हैं कि नहीं. ठीक है, so when I was growing up, अडॉप्टेड वाला जो चलता है ना कि अडॉप्टेड हो तुम, अडॉप्टेड हो भाई बहन. मेरा ब्रदर मेरे को अभी बोलता है तुम तो स्टेप डॉटर हो. ठीक है, वो अभी बोलता है मेरे को, थोड़े दिन पहले. छोटे में नहीं बोला, ही इज यंगेस्ट ना. तो ऐसा था. तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई हैड ऑल दिस हैंगअप्स. ओके, कि आई एम सो चबी, है ना. व्हेन आई वाज हेल्दी, और क्या होता है ना, हम चलते फिरते बहुत गिरते भी थे, मेरे को बड़ी चोट भी लगती रहती थी. तो ना बहुत कुछ था मेरे मन में टिल द टाइम आई वाज इन क्लास 3, 4, 5. तो क्या हो गया, वो चीज़ें मेरे मन में रह गई. So why I'm telling you this? Because I understood now that God made us like this for a reason. He could have made me anyway. He could have made you anyway. But when he decided that each of us have a unique fingerprint, yes, है ना, हम सब लोग different है, हम लोग सबकी एक different quality है. He chose this for me. So I have to accept myself the way God made me. Because if I'm not accepting it, what am I doing? I'm complaining about being me. कि भगवान जी ने जो मुझे ऐसे बना के भेजा है, चाहे मेरी नोज ऐसी बना के भेजी, चाहे मेरी हाइट ऐसे बना के भेजी, चाहे मेरी ड्राई स्किन भेजी, जैसे ही भेजी, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट गॉड्स क्रिएशन. या समथिंग दैट maybe I can do about or not. If I'm not accepting my color, my eyes, my hair, what am I doing? I'm all the time complaining and not being happy. तो जब हम ऐसे स्टेट में रहेंगे तो क्या हम किसी और चीज़ पे फोकस कर पाएंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे. आई ओनली बी थिंकिंग अबाउट ओ ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूँ, हाँ लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं. तो सबसे ज़रूरी है, वाई एम सेइंग, बिकॉज मेरे को
मम्मा लोग ने बोला भी, बट कभी हम उसको ना एक्सेप्ट फिर भी नहीं कर पाए. तो आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड इफ दीज थिंग्स आर देयर ऑन योर माइंड, वो बहुत मैटर करते हैं. व्हेन यू अननोइंगली ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे ना अफेक्ट करते हैं कि अरे मेरे चश्मा क्यों, एंड आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्स आल्सो. तो लॉट ऑफ थिंग्स ना व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वो जो टीनेज वाला एक वो आता है ना, तो वो फेज होता है, मेरी आवाज़ ऐसी क्यों है, मेरी ये ऐसा क्यों है ना, सारी चीज़ें आ जाती फिर एक संग. लाइक why? Because the law of attraction is like that. If I am finding one negative thing about me, what will I attract? More and more and more negative things. So what you should be doing is you should be looking in the mirror, each one of you, and you have to say, I am brilliant the way I am. I accept myself the way I am. Because these things when you start doing, they will empower you. जब आप मिरर में देख के ये बोलोगे कि आई एम वंडरफुल द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे गॉड मेड मी, you will, if you do it for 15-20 days, you'll see a major change in the way people treat you. Okay, the way people treat you and how life also starts happening amazingly for you. ये एकदम करना है आपको, चाहे आप जैसे भी हो. if you want to become thin, tall, whatever, so first you have to accept yourself the way you are. उसके बाद बाकी चीजें आएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है वैसे ही. सो दैट इज आई एम सेइंग. आपने देखा है इतने सारे मैंगो होते हैं, कोई भी मैंगो बोलता है मैं ज्यादा स्पेशल हूं, नहीं, एक ही पेड़ से इतने सारे टपके होते हैं, राइट? दे आर ऑल डिफरेंट, या, एंड दे आर ऑल यमी, है ना. आप एक मैंगो खा के बोलते हो, कभी कभी होता है कि हाँ नहीं वो वाला ज्यादा मीठा था, ये वाला, हाउ डज इट मैटर? ठीक है, तो इट इज लाइक दैट. एवरी वन इज स्पेशल, एवरी वन इज यूनिक. चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो एप्पल हो, हर जन को डिफरेंट चीजें पसंद हैं. इसीलिए भगवान ने इतने सारे यूनिक चीजें बनाई हुई हैं. ओके, सो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. ठीक है, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस मच लेटर इन लाइफ. तब तक जो होना था वो हो चुका था, बट फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप जिस एज में हो, अगर आप ये समझ लो कि यू आर एक्चुअली वेरी स्पेशल एंड यू आर सो स्पेशल दैट गॉड डिसाइडेड कि आपके मम्मी पापा के पास आप पहुंचो, क्योंकि उनसे आपको कुछ सीखना था, आप उनको कुछ सिखाओगे. ठीक है, सो बी दैट, फील दैट स्पेशल, या, एंड यू विल सी दैट सच्ची में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं. ओके, या, बी हैप्पी, एक्साइटेड, जॉयफुल. Ma'am, यस. ma'am, my mother always say I am so skinny, I am so skinny. Your mom says that she's skinny or you are skinny? I am skinny. I am. So nice, huh? Ask most of us. Just we want to be skinny. ठीक है, ऐसे ही होता है. जो होता है उसको वो अप्रिशिएट नहीं करता है. तो यू से कि यस मम्मा, आई एम सो लकी दैट आई एम ऑलरेडी लाइक दीपिका पादुकोण. ठीक है, आप यही बोलो. ओके, यस मम्मा, आई लाइक द वे आई एम. मैम, Yes? मुझे अच्छा लगता है स्किनी रह के. हाँ, बाकी लोग तो मोटे मोटे होते हैं. बाकी बस सुनो तनिष्का, यहीं स्टॉप हो जाओ. दूसरे लोगों के बारे में नहीं बोलना है. ठीक है, यू से आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम स्किनी. ट्रस्ट मी, लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्किनी होने के लिए, फिर भी होते हैं कि नहीं होते हैं वो अलग बात होती है. ठीक है, आपको क्या कहना है? आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम सो स्किनी. या, सो बी हैप्पी, एक्साइटेड, जॉयफुल एवरी डे. दिन में अगर आपने एक बार 5-10 मिनट हंसा नहीं तो क्या जिया. ठीक है, वॉच कपिल, वॉच टॉम एंड जेरी. जिसको देख के हंसी आती है, जिसके संग रह के हंसी आती है, हंसना ही है. या, सो दलाई लामा सेज, आई बिलीव दैट द वेरी पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज टू सीक हैप्पीनेस. ओके, नाउ दलाई लामा सबको पता है, लाइक अ बुद्धिस्ट मंक, बहुत ज़्यादा पीस और उसके बारे में बात करते हैं, इतना सारा माइंडफुलनेस के बारे में बात करते हैं. नाउ ही इज़ नॉट टेलिंग अस टू लीव एवरीथिंग एंड गो लिव ऑन अ माउंटेन. No, he's not telling us that. He is telling us that the purpose of our life is to seek happiness, not to study, not to work, not to look after kids. He is saying just be happy. ओके, तो अभी ठीक है, अभी हम लोग पेरेंट्स को अपनी नहीं समझा सकते कि पढ़ाई छोड़ो, वी हैव टू बी हैप्पी, लेट मी वॉच वीडियोज, लेट मी प्ले गेम्स. नहीं, व्हाट वी हैव टू डू इज whatever we are doing, whether we are studying, whether we are following our sports or passion about anything, any activity, we have to be happy in that. Okay, that is this quote. ये नहीं कि काम छोड़ के हम हैप्पी होने चले जाएं, नहीं, अपना काम करते करते, काम मतलब आपका काम अभी पढ़ाई है. ठीक है, तो यू हैव टू बी हैप्पी इन दैट. कि आप मैथ्स कर रहे हो, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसमें आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है. कैसे वो हैप्पीनेस मिलेगी? व्हेन यू आर गिविंग योर 100% टू दैट, you will find joy in that. Okay, be focused in what you're doing. Your studies, your career, your education is not necessarily your purpose. अगर तेंदुलकर के पापा ने बोला होता उसको
छोड़ो क्रिकेट, 10 का एग्जाम दो, क्या होता? So you have to find your passion and you have to follow that, okay? But it should be that you are giving it your 100% and you're finding the results in that. तो आप जो कर रहे हो, give it your best कि यही मेरा उठने से ही मेरे को यही ध्यान आता है, सोते ही मेरे को यही ध्यान आता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ओके? ठीक है, वो भी एक पर्पस हो सकता है, बट उससे ज़्यादा पर्पस है कि व्हाट आर यू हियर फॉर। आपको क्या है जो सुबह उठते ही मन करता है कि येस आई वांट टू डू मैथ्स, येस आई वांट टू बी अ डॉक्टर, येस आई वांट टू बिकम अ डांसर, आई वांट टू बिकम अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग? ओके, yes, every morning when you get up you should be expectant, happy and looking forward to things, yeah? तो जब आप रोज सुबह उठते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ओ फिर से स्कूल, फिर से वही ट्यूशन, नहीं, इट शुड नॉट बी दैट। इट शुड बी दैट यस व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न टुडे, व्हाट इज दिस न्यू थिंग दैट आई एम गोइंग टू लर्न टुडे। ये सोच के हमको उठना चाहिए, आज मैं उठ के किसको हंसाऊंगी, आज मैं उठ के क्या न्यू चीज़ सीखूंगी। सो दैट इज हाउ यू शुड बी गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ओके? बी पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, है ना? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपने देखा होगा कितने जन होते हैं, हो सकता है आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर, कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ है, आप उसके बारे में पूरा गूगल करके अच्छे से सब पता करके रखते हो कि हाँ ये उसका प्लस है, ये उसका माइनस है। तो बी दैट, because when you are doing that you are learning new things. When you are passionate about something, you will see that things also respond to you. Okay, so keep that passion alive. It could be anything, it could be your hobby, और hobby तो बहुत ज़रूरी है। there's this famous book Ikigai, आपने सुना उस बुक का नाम? Yes, Ikigai is indeed. yeah? Japanese. Yeah. तो क्या है, that book is all about people in Okinawa, Japan. Okay, वो book बोलती है people who are 80-90 years old, they are following their hobby. तो when we are doing this book with Ashmin मैम बोली कि सबको अपनी एक हॉबी पता होनी चाहिए, and you people, you already have a hobby, all of you have a hobby, I'm sure. To keep that thing alive, it should not be that after 20 years someone is saying अरे तुम्हारी हॉबी कहाँ है, उसको ढूंढ के लेके आओ, है ना? How many of you have seen 3 Idiots? Yeah, yes, I'm sure all of us have, right? हाँ, तो क्या होता है, आपके क्या है, लव है फोटोग्राफी, लेकिन क्या है, व्हाट वाज द डायलॉग दैट आमिर खान सेज अबाउट, इसका लव है फोटोग्राफी लेकिन इसकी बीवी है ये समथिंग इंजीनियरिंग, समथिंग दैट, yeah? So it should be that your hobby is something which drives you, okay? So you have to have a hobby आपको उसके बारे में कुछ करना है, because that will keep you more happy and positive about other things in life, okay? So be passionate and enthusiastic about the things that you love. It could be as simple as you love to draw and sketch, कि आपने पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, now just to feel relaxed and happy, maybe you are dancing to a tune, maybe you are singing, maybe you are coloring, maybe you are stitching, it could be anything, or maybe you are not doing some puzzle solving, anything जो अच्छा लगता है उसको आपको टाइम देना है, ओके? बट इट शुड बी बैलेंस्ड। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई छोड़ के आप पजल करने बैठ जाओ, ठीक है, या पढ़ाई छोड़ के आप गाना गाने बैठ जाओ। देयर हैज टू बी अ बैलेंस, या? सो नेक्स्ट, रीड योर लिस्ट अगेन एंड अगेन, फाइंड व्हाट यू रियली रियली वांट। जो डे 1 पे आपने एक लिस्ट बनाई थी आपके कि आपको क्या करने का मन है, कौन सी ड्रीम आपको पूरी करना है, तो रीड दैट। कितने बार होता है हम लोग सोचते कुछ और है, आगे आगे चल के लगता है, खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज दैट कि यस नो दिस इज नॉट योर पाथ, यू हैव टू फॉलो समथिंग एल्स इज योर कॉलिंग। सो व्हेन यू आर रीडिंग दैट लिस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यस मैंने ये लिखा था बट आई फील दैट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो दिस विल हैपन व्हेन यू आर रीडिंग योर लिस्ट अगेन एंड अगेन, ओके? आई एम नॉट सेइंग एवरी डे पढ़ने भी बहुत अच्छा होता है, बट ऑन एंड ऑफ भी आपको उसको पढ़ते रहना। आपने जो उसमें से टॉप 3 चीज़ें निकाली थी वो तो आपको करना ही है। यू हैव टू मेक योर विजन बोर्ड, यू हैव टू विजुअलाइज एंड यू हैव टू डू स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग से मेरे को याद आया, रिमेंबर संडे समवन आस्क्ड मी, रान्या आस्क्ड मी आई थिंक, कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, and I had said tomorrow is Monday and I'm going to office and my juniors are doing wonderful designs, my work was perfect and I also got a call from a new client। मेरे को याद है मैंने ये बोला था, ट्रस्ट मी, कल मंडे था, कल शाम को मेरे पास एक न्यू क्लाइंट का फोन आया। लाइक वाओ ये कैसे हो गया, हाँ कि ये कैसे हो गया कि क्लाइंट का मेरे पास न्यू क्लाइंट का फोन आ गया और मैंने कल ही शाम को सेशन में बोला था और ये हो गया।
एंड आई टोल्ड 2 people about this कि मैंने तो लिखा भी नहीं था. I just told as an example that I'll get a call from a new client, और न्यू क्लाइंट का फोन आ गया मेरे पास. So I was like, wow, I also have to start writing. मैंने तो just बोला था. So that is how powerful law of attraction is. When you're saying something with passion, with that feeling, it will definitely come in your life. ओके, जैसे बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलना चाहिए. दिन में सरस्वती जी एक बार जो वहाँ पे आती हैं. सो इट इज एक्चुअली लाइक दैट. सो थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव. ओके, yeah. So find your happiness, find your goal and get back on track. ठीक है. अभी कितने बार हम लोग थोड़े से ना क्लियर नहीं होते हैं क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है. So what we should be doing, हम लोग को बार बार अपनी लिस्ट इसीलिए देखनी है कि अरे मैंने तो ये लिखा था, मुझे तो वो चाहिए, मैं भूल के कुछ और कैसे करने लग गई. तो when you are reading that list, you get back on track. ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि मस्ती इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट अभी जो आपकी एज है, एक बार वो ट्रैक पे आ जाएगा, देन होल लाइफ इज जस्ट मस्त मस्त. ओके, सो आई थिंक इट इज, हम लोग को एक स्लाइड और है मेरे पास. या, इफ इट डजंट एक्साइट यू, इट इज नॉट फॉर यू. Choose for yourself, listen to everyone and see what gets you excited. You always have a choice. Please ignore some of these errors. Sorry. So it is like, if it doesn't excite you, अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ तुमको इंजीनियरिंग करनी है, नहीं तुमको तो मेडिसिन में जाना है, नहीं तुमको ये करना है, तो आप सबकी सुनिए, लेकिन करिए किसकी? अपने दिल के मन की. ठीक है, क्या बोल रहा है आपका दिल, क्या करने का मन है आपका. डू दैट, बिकॉज ओनली देन विल यू फाइंड ट्रू जॉय इन इट, ओनली देन विल यू सक्सीड इन इट. ओके, सो यू हैव टू चूज कि क्या अच्छा मन है करने का. सबका सुनना चाहिए. वाई? बिकॉज दे हैव सीन मच मोर देन यू हैव. या, और एटलीस्ट दे नो मच मोर. या, और दे कुड बी थोड़ा सा हो भी सकता है, बट दे आर डेफिनेटली. बाल सफेद नहीं किए वाला है. कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी बिना कोई चीज के भी धूप में बाल सफेद हो जाते हैं. ठीक है, कुछ भी नहीं पता होता है फिर भी हो जाते हैं. ठीक है, बट यस कनिष्का, यू आर राइट. व्हाट आई एम सेइंग इज, सबकी सुनिए, बट डू व्हाट यू वुड लव टू डू. ओके, किसी की बातों में आके मेडिसिन, किसी की बातों में आके इंजीनियरिंग या सीए नहीं करना है. इफ यू फील कि यू विल बी हैप्पी इन दैट, ओनली देन डू इट. ओके, बिकॉज अभी क्या है ना, यू आर एट एन एज दैट बहुत लोग बातें बोलेंगे, यू कैन गेट इन्फ्लुएंस, बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट, या आप अपने टाइम लगा रहे हो, आपके वो साल अगर चले गए सपोज इन मेडिसिन, इन इंजीनियरिंग, यू विल नॉट गेट देम बैक. तो डू समथिंग विच यू विल एंजॉय. या, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन, you are creating it for yourself. Okay, so we'll quickly do one more slide and then I want all of you to give me a takeaway. Yes, you are the secret. How? Because it is in you. Whatever power that we have been speaking about, whatever we have been talking about, it is all in you. Your thoughts are attracting your world around you. Your thoughts are creating the world around you. So you are the secret. आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, वो आप खुद बना सकते हो, है ना? And how do we do that? The more you use your power, the stronger you attract it for yourself. कौन सा power है ये? The law of attraction, the power inside you, the power to choose positive thoughts. जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में वो आता ही जाएगा. ओके, दैट इज हाउ इट इज. इट्स लाइक मैथ्स में आप स्ट्रांग हो तो क्या होता है, यू वांट टू डू मोर ऑफ मैथ्स. आप इंग्लिश में अच्छे हो तो क्या होता है, आपको मन करता है कि और उसके बारे में बुक्स पढ़ो, रिसर्च करो, खुद ही मन करता है ना. सो दैट इज द पावर इन यू. जितना ज़्यादा आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करोगे, आज आपने यूज़ किया, आपको रिजल्ट आज ही दिखेगा, कल फिर आप यू बी सो हैप्पी कि वाओ ये मैंने क्रिएट किया, यू वुड वांट टू डू इट अगेन एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड एडिंग टू योर लाइफ. ओके, सो यूज दिस पावर विद you. Honey, I will complete this slide and then we'll take questions, okay? Because I think it is already 9:50, na? Yeah. So मैम लास्ट डे आज तो बनता है फिर एक्सटेंड होना. Okay, I'm cool. Yeah. You guys have to say yes. So yes, you are unique and special. Appreciate this and the power you have. So each one of you is like super unique. ओके, आधे जन को तो हमने देखा भी नहीं है, बट जिनको भी देखा है, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव बीन कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू. इट्स जस्ट अमेजिंग. या, सो यू आर यूनिक एंड स्पेशल. वरना यस, एकदम या. सो अप्रिशिएट दिस, अप्रिशिएट योर सेल्फ, एंड when you are appreciating yourself, you will stand for yourself also. कि कोई आपको कुछ भी बोल देगा, what you have to do? आप उसको दिल पे नहीं लोगे. आप क्या करोगे? बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड. आप उसको यहाँ से सुनोगे और यहीं से डिफ्लेक्ट कर दोगे. ठीक है,
ये नहीं कि यहाँ से सुनोगे और यहाँ से उसको 2 बात सुना दोगे। क्यों? क्योंकि जो बोलता है वही होता है, राइट? है ना? हम जिसको जो बोलेंगे वो हमारे लाइफ में आ जाएगा, है ना? तो उसको कुछ बोलना ही नहीं है। इट इज लाइक व्हेन यू आर ऑन द रोड्स, देयर सम एनिमल्स, वो भौं-भौं करेंगे, म्याऊं-म्याऊं करेंगे। विल यू डू भौं-भौं म्याऊं-म्याऊं विद देम? No. What will you do? You'll just ignore them. Yeah. So that is what you have to do with people who are not of interest to you. You'll just ignore them. Just ignore them. Why? Because you are special. Whatever qualities you have, no one else has. Yeah. आपको जो क्वालिटी दी है आपकी सिस्टर को भी नहीं दी है, आपके ब्रदर को भी नहीं दी है, तो योर क्वालिटी इज यूनिक टू यू. सो यू हैव टू अप्रिशिएट दिस बिकॉज दैट इज योर पावर. ओके, तो पहले आपको समझना होगा कि क्या क्वालिटी है. ओके, वो आ जाएगी समझ में. जस्ट लुक इन द मिरर एंड कीप स्पीकिंग टू योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड योर पावर. ओके, या, सो यू आर द फ्यूचर. है ना, लोग बोलते हैं ना यंग जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. हाँ, कैसे है? यू आर द फ्यूचर, यू क्रिएट योर फ्यूचर. है ना, आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बना रहे हो. व्हाट काइंड ऑफ अ फ्यूचर डू यू वांट फॉर योर सेल्फ? कंट्री फिर आती है, पहले तो आपसे स्टार्ट होती है. तो आपको चूज करना है आपकी ड्रीम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. ड्रीम है क्या आपकी, उस पर वर्क करना है और वही आपकी लाइफ बनती जाएगी. यू नो हाउ इट हैपन्स. पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ योर थॉट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, यू आर लिविंग द लाइफ दैट मेनी आर ड्रीमिंग ऑफ. हम सोचते हैं ना मेरे पास तो ये नहीं है, देखो अंबानी के बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता है, लेटे रहते हैं, सिल्वर स्पून है, ये है वो है. हाँ, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बट कभी सोचा आपने कि मेरी जो लाइफ है वो कितने लोगों की ड्रीम है. हाँ, हम यहाँ पे आराम से बैठ के जूम का सेशन कर रहे हैं. पीपल डोंट इवन हैव अ लैपटॉप, दे डोंट इवन हैव अ होम. हमारी जो लाइफ है दे आर ड्रीमिंग ऑफ. व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर सो ब्लेस्ड, that is when our blessings will keep on increasing. Okay, because gratitude is a magnet for miracles. हाँ, हम जिस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होंगे वो और लाइफ में बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो ये जब हम समझ लें ना, आप बोलोगे नहीं नहीं हम अपने से नीचे के लोगों को क्यों देखें, हमको अपने से ऊपर के लोगों को देखना है, दोनों को देखना है. नीचे के लोगों को देख के हम समझेंगे कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, तो हमारे पास जो है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे. ऊपर के लोगों को देख के हम aspire होंगे कि yes, that is what I'm expecting, that is what I'm getting, but first I have to be very grateful for whatever I am. ठीक है, तो ये दोनों को ही देखना होता है. नीचे को देख के हमको समझना होता है कि भगवान आपने हमको इतना कुछ दिया है, और जो ऊपर है उनको देख के समझना है कि yes, I'm so happy here, but I would love to be there, I would love to attract more, I would love to be richer, healthier, wealthier, जो भी. ठीक है, तो हमको दोनों को देखना होता है, बट सही दृष्टि से देखना होता है. या हाँ, इससे मेरे को याद आया, यत भावम तत् दृष्टि. या आई थिंक दैट इज द कोड. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको दिखाई देता है ना. इट इज लाइक द ग्लास इज हाफ एम्प्टी हाफ फुल. इट्स लाइक आवर थॉट्स विच मेक अस सी हाउ लाइफ इज. use this power now. You know how I try to rhyme it a bit. Yeah, so what is this power? The power of choice in you. The law of attraction is the law of one. It is only working on you. ये हम नहीं कह सकते कि कनिष्का के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, हनी के ऊपर नहीं हो रहा है. नहीं, हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज हर जन का लॉ उसके लिए खुद का होता है कि वो क्या कर्म करके आया है, उसने कल कौन से बीज बोए हैं, वो उस पर्सन को इंडिविजुअली मिलता है. ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द पावर. जैसे बोलते हैं ना, यू आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन. हमारे अंदर वो जो सोल है, जो हार्ट हम. अच्छा, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू समथिंग. वो यही बोल रहे थे कि हार्ट हमको क्या करता है, हार्ट हमको क्या करता है, हार्ट हमको बोलता है कि यस सोचो समझो देख के करो. दिमाग क्या बोलता है, नहीं एनालाइज करो, है ना, यही बोलता है ना. इट्स लाइक देखो डिफरेंस क्या है. एंड दिल बोलता है कि नहीं कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, बी काइंड, बी नाइस. दिल यही बोलता है ना हम लोग को. सो वी हैव टू फॉलो आवर हार्ट. ओके, हम लोग दिमाग की सुननी चाहिए, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर हार्ट विल बी ऑन द राइट पाथ. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. या मैम, एवरी टाइम वी हैव टू फॉलो आवर हार्ट. इज इट लाइक दैट? अब देखिए, ये तो बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ डबल मीनिंग वाला स्टेटमेंट कनिष्का यू आर आस्किंग. एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो आवर हार्ट, पता नहीं कौन सा क्या क्वेश्चन है. नो, you will have to practice it to understand, okay, that yes, should I be following my heart, should I be following my mind. वो कब आता है, when you understand कि yes, now I know कि what my heart is actually saying or what I want my heart to say. ये तब आएगा. जैसे दिल बोलेगा अरे खा लो रसगुल्ला, क्या चाहता है, बोलेगा तो एक बार में तो बोलोगे हाँ दिल कह रहा है खा लो, बट दिमाग कह रहा है मत खाओ. ओके, नो, इट इज नॉट दैट. यू हैव टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ.
ओके कि हाँ अब ये जो दिल कह रहा है ये बात सही कह रहा है, दैट आई वॉन्ट टू फॉलो फैशन डिजाइनिंग, ओके fashion designing, okay, my heart is saying that yes, don't study maths, don't study engineering, follow your passion for designing, तब आप उसको follow करना है, okay, it is like those kind of questions, those kind of feelings, see what you enjoy doing, what you would love to do, हाँ उस समय आपको अपने heart को follow करना है, okay, so thank you everyone, and I know मैंने आज थोड़ा सा rush up कर दिया, but there are so many things still to cover, yeah, so maybe maybe after a couple of months, if you guys are interested, we can do some more sessions, maybe 2-3 days, or if you guys are cool about doing the magic book, we can do the magic book also, okay. So thank you so much for all of you being here, and I'm so blessed कि every day आप लोग जितने जन भी आ रहे हो 1 घंटा आके यहाँ पे to sit here and listen to me blabber, okay. So thank you so much, thank you. Yes honey, you have a question? मैम एक्चुअली आपने बोला था कि कुछ भी लाइक पॉजिटिव सोचेंगे, उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वही होगा। मैम मेरा ऑपोजिट होता है, मैम उसके बारे में सोचता है कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा होगा, पर वो फिर जैसे कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो फिर मैम वो सब्जेक्ट बाद में हम जैसे बोलते वो अच्छा हो रहा है वो वैसे गंदा होने लग जाता है, तो इसलिए हम बोलते ही नहीं है कुछ, हम बोलते वो अच्छा नहीं लगता तब जाके। नहीं इसमें क्या होता है हनी, देखो एक बार ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन किसी और ने भी किया था, देखो क्या होता है जब एक आध बार ऐसा हुआ होगा तब तुमने इसको अपना ना बिलीफ बना लिया होगा कि जो हम बोलते हैं ना उसका उल्टा हो जाता है, और क्या होता है लाइफ में वही होता है जो बिलीफ जिसपे हमको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है वही होता है, ओके, और ये बिलीफ को चेंज करने के लिए अफर्मेशंस काम आते हैं, ओके। तो इफ यू समवेयर बिलीव दैट जो हम बोलते हैं उसका उल्टा होता है तो वैसा ही होएगा, बिकॉज हमारा बिलीव हमारे लाइफ बनाता है, वो ही हमारे, क्योंकि बिलीव के संग ना कहीं हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, तभी हमारे लाइफ में वो आता है। तो इफ यू हैव टू से नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो ही होता है, ओके। व्हेन यू स्टार्ट सेइंग लाइक दिस देन ग्रेजुअली योर बिलीफ विल आल्सो स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज अभी इस स्टेज पे अगर इस एज पे यू आर सेइंग कि नहीं मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा होता है, तो आगे तो बहुत लंबी लाइफ है। आप सोचो, यू वुड वांट टू से कि जो हम कहते हैं वही हो, rather than जो हम कहते हैं उसका उल्टा हो, है ना। तो यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योर बिलीफ, ओके। तो अभी से ये बोलना है कि नहीं हम जो कहते हैं वही होता है, ओके, जो हम चाहते हैं वही होता है। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दीज अफर्मेशंस, और बार बार उसको रिपीट करना है कि whatever I say happens, whatever I feel happens, whatever I choose happens. You keep on saying this and that is how it will start happening, okay. So before we end the session, I want all of you to share something कि yes कि क्या आपने सीखा इन 10 days में, anyone wants to share what were your takeaways rather than सीखा तो बहुत कुछ हम तो सिखा नहीं रहे थे, but what were your takeaways, what is important, that 1 or 2 things that you feel कि yes this was something different that I would want to follow. Hello auntie. Yes. हाँ आंटी, एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम जब सेशन अटेंड किया था ना जिस दिन, उसके बाद एक्चुअली में मम्मा की तबीयत मतलब बहुत खराब हो गई, जैसे हॉस्पिटलाइज्ड, so that's why I couldn't continue it. But now but I remember like उस दिन जब मैंने सेशन किया था तो I knew कि सेशन स्टार्ट हो गया, but I totally forgot about it, like मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो उस दिन हमारी क्लास में मेरी जो मैथ्स टीचर है वो मैथ्स के टेस्ट आने वाले थे, तो मैम ऐसे बार बार बोल रही थी कि हमेशा हर स्टूडेंट यही बोलेगा आपसे कि आई लव मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड एवरीवन इज गोना स्कोर आउट इन मैथ। तो मैम जब ऐसे बोल रही थी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैम ने मैजिक बुक और सीक्रेट इन सब के बारे में ही बात करी है। तो मैंने मैम को पूछ लिया, मैम हैव यू रेड द सीक्रेट बुक? तो मैम बोली ओ या इवन यू नो अबाउट इट करके। मैम बोली तब मुझे लाइक जैसे मैंने तो की भी है ना मैजिक बुक, तो तब मुझे क्यों मिला कि आई थिंक आई हैव टू go and join the session today, and that's why I did that day. Okay, very nice. But see, ma'am ने आपको affirmation सिखाया that everyone loves maths, okay? Because I have seen many people are not so fond of maths. So when you are saying, yeah, कि yes, I love maths, and every day you are saying I love maths, और उसको बार बार repeat करना है. So when you are repeating this that you are so good at maths, and that is how
things start happening for you. That is how your maths will improve. That is how your, you know, whatever you are talking about, that will happen in your life. Okay. एंड ऑल्सो लाइक यूजली मतलब मैम ने ऐसा बोला था, एंड मुझे मैथ से लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम कंफर्टेबल विद इट, बट लाइक ट्रिग्नोमेट्री हमको इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट था वो मुझे बहुत टफ लगता था, तो मैम ऐसे बोलती थी तो मैम हमको रिपीट करवाती थी, एंड अभी तो कुछ दिनों पहले ही हमारे टेस्ट हो गए, एंड उसके बाद मैम ने अभी वर्कशीट दी थी, एंड जब मैं वो वर्कशीट सॉल्व करने बैठी, आई लिटरली वाज सरप्राइज्ड बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सम्स अपने आप बिना रेफरेंस के सॉल्व कर लिए, सिर्फ आई थिंक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं हुए, बाकी एवरीथिंग वाज लाइक सो इजीली हो गया। हाँ, वाह, वेरी नाइस राशि, वेरी गुड। ओके, तो ऐसे ही हो जाता है। ओके, वैसे ही ईजी हो जाता है। आई एम टेलिंग यू, जब मैंने फर्स्ट मैजिक बुक सेशन किया था, तो मैंने ड्रीम में लिखा था, बेटा, टॉकिंग अबाउट 2.5 years बैक, दैट आई वांट टू बिकम 60 kg। और मैं रोज वो ड्रीम देखती थी, ऑटोमेटिकली खाना सही हो गया, न्यूट्रिशियस हो गया, वर्कआउट्स प्रॉपर होने लगे, और मेरा वेट विद इन 3-4 months उतना ही हो गया जो मेरा आइडियल वेट था। तो ऐसे ही हो गया। इट्स लाइक, यू नो, व्हेन यू आर सेइंग दीज थिंग्स, ऑटोमेटिकली रास्ता दिखने लगता है कि हाँ, ये डाइट फॉलो करो, ये एक्सरसाइज करो, जैसे बोलते हैं ना, रास्ते खुलने लगते हैं। पहले भी एक्सरसाइज करते थे, पहले भी डाइट कंट्रोल करना चाहते थे, बट जब इस तरीके से हम अफर्म करने लगते हैं, या ड्रीम में लिखने लगते हैं, या विजन बोर्ड बनाने लगते हैं, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा और विल पावर बोलिए या रास्ते बोलिए, वो और इजी और यू नो स्मूथ होने लगते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ अफर्मेशंस, विजन बोर्ड्स, कि नो, कि कैसे सडनली कोई ट्यूटर अच्छा मिल जाता है, या कोई आपको डाइट चार्ट अच्छा मिल जाता है। आपकी ड्रीम क्या है, जिस पे हम फोकस करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगती हैं। सो वेरी गुड राशि, फॉलो दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूज द gratitude power, and see how magical life becomes. Okay, so thank you Rashi for your takeaway. Someone else please, आपको बताना है कि आपने क्या किया यहाँ पे 10 दिन. Okay, yeah. Nancy, I Yes, was Tanvi. sharing. Yes, Tanvi, so happy to see you. Yeah. Okay, so 4 of my dreams from the vision board are completed now. Wow, 4. Awesome. Yeah, so I achieved my dream weight of 45 kgs. So that's one. And I wanted to get a third piercing, helix piercing done. So I even got that. Okay. I got a tattoo, which I also got. And one of the major dreams was I gave my ICSE 10th standard exam in 2020 in May. So yesterday the result came out, and in my vision board, I had written that I wanted 98%, and I got my dream marks as well. So I got 98.4, and so in the beginning of the year, when I was making a yearly timetable, I'd also written underneath that I can do this, and I'm getting 98%. Other than just the vision board, so I got 98, and I was really happy. Thank you. Very nice, Tanvi. I'm so proud of you, and you have to share how long you have been practicing gratitude, or what have you done, because many of us over here are new to this journey. Okay, so you have to tell them ki how you started and what happened, because that will inspire and you will be more blessed, right? Yes. Yeah. I think I started, I mean, mom was doing it before, so I knew the concept for a long time, but I'm really into it for the past 6 months. So I keep practicing. I mean, beach mein I had left blessings karna thoda, but now I make it a point that I do at least magic rock and blessings, if nothing else, and I keep thanking everything else in the course of the day. So Okay, wonderful. And your vision board also, right? So yes. those of you who are new on this path, please अपना मैजिक रॉक करना ही करना है सोने के पहले। सुबह उठते ही आपको अपने ब्लेसिंग्स लिखने ही हैं। ओके, नहीं लिखने हैं तो सुबह उठ के कम से कम 10-12 चीजों के लिए थैंकफुल होना है। लिखने से क्या होता है, अपन एक बोलेंगे, 2 बोलेंगे, उसमें उतना टाइम नहीं लगता। व्हेन यू आर राइटिंग, देयर इज अ पावर ऑफ सम 17 seconds when you're reading about, you know, Nikola Tesla, or you know, other people about in this you know, field, they will tell you there's a science of 17 seconds. उतने देर जब हमारी फीलिंग्स एक जोन में रहती हैं, then we move to a higher frequency. ओके, इसलिए राइटिंग में क्या होता है, आप राइटिंग में तो थोड़ा टाइम लगता है ना लिखने में, है ना, प्लस there's a connection to the, you know, neuron pathway to the brain something, तो भी जो हम जब लिख रहे होते हैं तो एक अलग फीलिंग्स आती हैं। तो लिखना बहुत पावरफुल होता है। आप अपनी ड्रीम लिखो, ब्लेसिंग्स लिखो, राइटिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। जैसे बोलते हैं ना कि विल भी क्यों लिखवाते हैं लोग, राइट? आप सोचो ना,
कुछ बोल दिया अलग बात है, लिखने का एक अलग पावर होता है. सो दैट इज वाई राइटिंग इज वेरी पावरफुल एंड मैजिक रॉक लाइक व्हाट तन्वी इज सेइंग इज सुपर पावरफुल. माने ये आपका दाल चावल होना चाहिए दिन का, ठीक है, कि दाल चावल नहीं खाया तो क्या खाया टाइप्स नहीं होता, जैसे लाइक अ कॉम्बिनेशन, या इडली सांबर, लाइक इडली चटनी होता है ना जैसे. तो दिस मैजिक रॉक एंड ब्लेसिंग्स आर लाइक दैट, कि आप और कोई प्रैक्टिस करिए चाहे नहीं करिए, सोने के पहले यू हैव टू बी ग्रेटफुल, उठने के साथ यू हैव टू बी ग्रेटफुल. एंड थैंक यू तन्वी फॉर टेलिंग अस अबाउट योर विजन बोर्ड, कि विजन बोर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल होता है. Okay, so thank you for Tanvi for this, and more blessings, and I'm sure you will even get your, you know, some car that you are looking for, blue in Yes, New yes, York. Porsche, blue, yeah, blue Yes, Porsche. yes, yeah, blue. You will get that also. Yeah. So Yes, thank yes. you, thank you for your thanks. Yeah, Thank you so much. thank you. Yeah. Anyone else wants to share कि आपने क्या one takeaway, everyone, only one line you have to say. इतना 10 दिन से बोल रहे non stop, हाँ. One line you have to say. That what did you understand from this session? मैम हम लोग को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, Yes. हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, हमेशा जो है उसमें खुश रहना चाहिए. यस, वेरी गुड. और पॉजिटिव आप कैसे रहोगे, ये ज़रूरी है कि अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखना है, ठीक है. सब लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन कैसे भी पॉजिटिव, ओके. फाइंड ग्रैटिट्यूड इन एवरीथिंग, वो सबसे इजी वे है पॉजिटिव रहने का, ओके. दैट लाइक यू नो, जो हो रहा है इट इज़ सो हैप्पी, इट इज़ सो गुड, सो बी ग्रेटफुल इन दैट. हाँ, या थैंक यू अनी, थैंक यू फॉर दिस. या एनीवन एल्स, जल्दी बोल तो, करना क्या होगा, इजी पॉइंट सब पहले खत्म हो जाएंगे. या yes. Ma'am, so I would like to say कि in this session I made a more strong belief in this whole gratitude, manifestation and law of attraction thing, because I have also done magic book. I had this idea and I have the concept that what actually it is, but I was like, ऐसा सच्ची में नहीं होता होगा, it's all fake. I don't know. I didn't believe at that time, but I don't know. Like I would like to share. It's some past almost 2-3 months back. So I did this magic book and also I had this idea. So this time in the 10th standard, we have this 2-term exam. So in my first term, I gave my exam, and so my mother made me write ki you have done magic book and you know all about it. So write your target, that how much you want to score. So I was like, okay, I have given my exams and I was sure that I would score 95%. And before that only I wrote it ki thank you, I'm scoring 95% in my exam. And all paper went very easy. So 2-3 months back we got a result, and fortunately I scored 95%, exact 95%. Wow. And I was like कि ठीक है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर मैंने जितना मेहनत किया था उस हिसाब से हो गया, मुझे मिल गया, मैं श्योर थी मुझे 95% आ जाएंगे. तो my mom was like, you need to believe कि तुमने लिखा और वो सेम चीज हुआ. I was like, okay, we'll see about it. So अभी आपको मैंने आपसे बात की थी मैम, right, 2 days back, I mean yesterday or day before yesterday, that I want 98% this time. Yeah. So I don't know if I get it, then I'm definitely I will have this strong belief कि I don't know नहीं बोलना है, okay. मतलब कि पक्का नहीं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो ना, you have a strong belief, you have to have a yes, strong. ma'am, I even changed my wallpaper of my phone to 98%. I will show you later. Yes, एकदम, okay. So yes, oh wow, yes, wonderful. I changed it to 98%. Even everywhere I see 98%. Even on my hand, I've written 98% right now. Wow, lovely. My mom was like, see, now you started believing. I was like, हाँ मम्मी, ये सेशन इतना अच्छा था कि एक हो गया कि हाँ हो सकता है. एकदम होगा, हो सकता नहीं, हो गया, okay. You have to feel like that, yeah. So yes, thank you Kanishka, and I'm sure you are sharing with us कि you've got 98%, right? Group में लिखना होगा, yeah. Yes ma'am, पक्का से एकदम. Yes, done, perfect, yeah. Yes, anyone else कि what was your takeaway? हमको पॉजिटिव रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है, बिलीव करना है, एंड yeah. Yes, एक sharing, just one, and then we'll wind up and we'll see each other soon sometime. Yeah. Yes. प्रेक्षा, दीप, सविता, आपको कुछ बोलना है? कुछ आई थिंक इस सेशन में ऐसे तो मुझे पहले से काफी चीजें पता थी, लाइक मम्मा वाज डूइंग, सो आई वाज लिसनिंग टू इट कंटिन्यूअसली. बट इस सेशन में आई थिंक आई स्टार्टेड डूइंग इट एक्चुअली, क्योंकि पहले था कि बस सुन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है, पर इस बार एक्चुअली लाइक आई स्टार्टेड डूइंग इट प्रॉपर्ली, पूरा अच्छे से.
ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड प्रेक्षा, एंड प्लीज मेक योर विजन बोर्ड, वो सबसे ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज और अच्छा, विजन बोर्ड के पहले हमको पता होना चाहिए हमको क्या चाहिए, तभी तो वरना विजन बोर्ड किसका बनाएंगे, ठीक है? और वो चीज़ आपकी होनी चाहिए, शुड नॉट बी कि हाँ फ्रेंड को भी चाहिए तो इसलिए मैंने भी बना ली, नेबर को भी चाहिए इसलिए मैंने बना ली, कजन को भी चाहिए इसलिए मैंने बना ली, नहीं, इट हैज़ टू बी वॉट यू वॉन्ट, ओके? So yes, thank you Preksha, thank you for this, and I'm sure whatever you are practicing, you will attract more and more positive things, okay? So thank you. Yeah. Yes, anyone else, or should we call it a night? Savita and Deep, I would love to hear from both of you also, but it's fine, I will not insist, but I would love to hear from you guys. Yeah. Okay, so koi baat nahi. So let's do gratitude, and then I'm sure you guys will just rock each and every day, and because you Thank you. are the, या yeah, मैम, yes, थैंक यू सो मच. एक्चुअली ये क्लास अटेंड करने के बाद हमें पता चला कि सो मेनी थिंग्स व्हाट वी डू इन डेली लाइफ हम पे कितना मतलब इन्वॉल्व्स, मतलब जो भी हमारे आसपास है, दैट गिव्स सो मच ऑफ अट्रैक्शन. पहले ये नहीं पता था, हमको लगता तो जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन नाउ वी अंडरस्टूड कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज समथिंग लाइक रिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन, सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है. yes. And yes, we have learned so much and hope कि जो भी इस सेक्शन में किया है will अपने लाइफ में जरूर इन्वॉल्व करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल करोगे आप, और शेयर भी करोगे कि क्या क्या मैजिक हुआ है, बिकॉज जब आप शेयर करते हो तो और ज्यादा पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो लाइफ में, ओके? Yes, तो थैंक yes. यू सविता, बस जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड स्टे पॉजिटिव, ओके? सो Yes, थैंक यू, हाँ. Okay, so let's join our hands and be grateful to the supreme power, okay? So thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this amazing session of past 10 days. Thank you for connecting me with these amazing youngsters who are the future. Thank you for the positivity, the love and affection that I keep attracting from all over and everyone. Thank you for the smiles and happiness that we all have in our lives. Thank you for the family and friends. Thank you for their good health. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone, and I'm super blessed to get this opportunity to be with you here, and I really appreciate your time and commitment. Thank you. ma'am, excuse me, ma'am. Yeah. We want actually I want to know mothers के magic book का कब शुरू होगा for mummies. मम्मीज एंड अडल्ट्स का, माने उन लोगों का आई थिंक या तो अगस्त बिगनिंग में शुरू होगा या जुलाई एंड में शुरू होगा, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, thank you and love you all, and love you all, and lots of hearts to you guys also, okay? So keep Ma'am, we are also waiting for magic book. That's not fair. Every time adults know, ma'am. That's not fair. okay, We also want. you also want na, but see you guys have school also na, है ना? तो But एक ma'am, घंटा we are almost 16 and 17, so it's not much of like night में तो चल ही जाता है. नाइट में चली जाता है. सी आई ओनली गेट दिस टाइम ओनली फ्रॉम Quarter to 9 to 10 ऑलमोस्ट, सो आई कैन ओनली टेक वन सेशन. पहले मैंने लास्ट ईयर किसी भी तरह 2 सेशंस बैक टू बैक कर लिए थे, ओके, फ्रॉम 8 to 9 and 9 to 10 आई यूज टू डू, सो दैट वाज अ लिटिल, थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा हो जा रहा था, बट लेट मी सी अगर होगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर कमिंग ऑल्सो, ओके? देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट 20 पीपल, है ना? तो तब थोड़ा सा अच्छा लगता है करने में सेशन. ऑफ कोर्स आई लव टू सी यू ऑल हियर, बट कहाँ से सी, सबका तो कैमरा ऑफ ही रहता है, 2-3 जन का ऑन रहता है, या सो ना यू ऑल्सो नीड सम स्माइलिंग फेसेस टू लुक एट दैट. यस, कोई सुन भी रहा है, सो नहीं गया मेरी बातें सुन के. यस, सो लेट मी सी if possible I'll definitely start, otherwise winter holidays mein we can do, okay? Okay, thank you and lots of blessings, and all your dreams are coming true, okay? So love you all, and God is always kind and with you, yeah? So thank you. Same to you, ma'am. Same to you so much. Thank आप you. हमारे लिए फ्री में इतना आपका टाइम दे रहे हो, इतना आपकी शेयरिंग्स कर रहे हो, तो it's like it is like I'm learning when I'm with you, when I'm telling you things, I am also learning so much, okay? It's like when I'm preparing, मेरा revision हो रहा है, and I get to know like the kind of questions some of you guys have asked. I told you, मैंने बस 3-4 दिन पहले वो पढ़ा होता है, पता था, but it's like कि क्यों पढ़ा था? Because भगवान को लगा कि
कोई मुझसे पूछ सकता है, so I'm also learning every day, and when I'm discussing with you, when I'm talking to you, it is like a revision for me also. Otherwise क्या होता, हम पक्का कुछ मैनिफेस्ट देख रहे होते बैठ के टीवी में, या कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे होते. हाउ मेनी ऑफ यू सीन अम्ब्रेला अकेडमी? देख लिया सबने? हाँ, आई हैव आल्सो सीन स्ट्रेंजर थिंग्स. आई हैव नॉट वॉच्ड, बट अम्ब्रेला अकेडमी पूरा देख लिया. सो वो कर रहे होते, but this is so much more fun. It's like if I can maybe tell you just one thing which gets stuck here, or which connects with you, that will be a super blessing for me, that I got the chance to tell you some positive thing that you could make your life better. So thank you so much, for giving me this. Thank you. Thank you so Thank you, ma'am, for teaching us so much, like thank acha you. cheese and all that. Thank you. Yeah, thank you. Good night, and see you all soon. Yeah, bye bye. Thank you so much. Bye. Good night. Thank you. Good night. Yes, bye bye.